Good morning students. Today is 18th April and this is maths lecture for class 12 students. We are going to deliver 10th lecture on topic relations and functions. So in last lecture we have discussed NCERT exercise 1.1 and I think we have discussed question number 1 part 1 and part 2. So today we will discuss question number 1 part 3. See, the question is given here: determine whether given relation is reflexive, symmetric and transitive, and your relation is relation R in the set A 1 2 3 4 5 6 as R equals to x comma y such that y is divisible by x. ओके स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर जो रिलेशन गिवन है उसके लिए हमें चेक करना है कि वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. फाइन. सो अगेन r equals to x comma y, so we will consider only that x comma y for which this definition is true. हमें सिर्फ वही x comma y लेना है जिसके लिए y is divisible by x हो. y is divisible by x हो. Okay, so let us try to write this relation. चलो इस रिलेशन को लिखने की कोशिश करें. y is divisible by x. So at first consider y. Suppose y equals to 1. What will be x then? Again, no need to discuss. We have discussed many times that x comma y belongs to set A. If x comma y belongs to relation, x comma y belongs to relation. I am writing again. X comma y belongs to relation on set A. That means on set A cross A. So x belongs to set A and y belongs to set A. We have discussed very clearly in the last lecture regarding these things. Okay, so let us consider y equals to 1. Now y is divisible by x. तो अब कौन कौन सा x आप यहाँ से ले सकते हो जिसके लिए हम बोले कि 1 is divisible by. तो 1 is divisible by 1 लिख लिए. फिर 1 is divisible by 2, no. Divisible by 3, 4, 5, 6, no. Okay, now we will consider. Okay, so now we will consider y equals to 2. So y is divisible by x. So 2 is divisible by, यहाँ से ढूंढो कौन कौन होगा. 2 is divisible by 1. अगेन फिर y लिख लेते हैं पहले, इजी होगा. y is divisible by x ढूंढना. तो 2 is divisible by 1 तो लिख लिया. 2 is divisible by 2. अगेन 2 is divisible by 3, no. 4, 5, 6, no. ओके, फिर आप लिखो y equals to 3. देखना, आप ध्यान देना, ये y के पोजीशन पर लिख रहे हैं and the position of x is blank now here this time. So if y is 3, then 3 is divisible by, y is divisible by x. तो 3 is divisible by, यहाँ से x को ढूंढो. 3 is divisible by 1. 3 is divisible by 2, no. 3 is divisible by 3, yes. 3 comma 3, fine. Then 3 is divisible by 4, obviously not. 5, 6, no. Then we will consider y equals to 4. So 4 is divisible by, y is divisible by x. 4 is divisible by x ढूंढो. 4 is divisible by 1, yes. I am writing here. 4 is divisible by 2, yes. 4 is divisible by 3, of course not. 4 is divisible by 4, yes. Okay, then 4 is divisible by 5, 4 is divisible by 6, no. समझ में आ रही बात. Then we will write 5. y is divisible by x. तो 5 is divisible by 1. 5 is divisible by 2, no. 5 is divisible by 3, no. 5 is divisible by 4, no. 5 is divisible by 5, yes. 5 is divisible by 6, of course not. चलो फिर आप 6 लिखो.
तो y इज डिविजिबल बाई x, तो 6 इज डिविजिबल बाई 1, ओके, 6 is divisible by 2, yes, 6 is divisible by 3, yes, okay, 6 is divisible by 4, no, 6 is divisible by 5, no, 6 is divisible by 6, yes. Now no more elements, y को हम लोग 1 ले सकते थे, 2, 3, 4, 5 और 6 लेकर के चेक कर सकते थे, ऑर्डर पेयर लिख पा रहे थे कि y is divisible by x, okay. Now after 6 we are not having any entry, अब कोई एंट्री नहीं है, तो आप यहाँ पर इसे क्लोज कर लो. Is that clear? Okay. Now see, after writing relation we will check for reflexive, symmetric and transitive one by one. अभी हमारे पास ये रिलेशन आ गया, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं. तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1, 2, 3, 4, 5 and 6 if we have element in A and relation on set A is reflexive, then we should have what? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 and 6, 6. सर्च करो, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 भी है, 5, 5 भी है and 6, 6 भी है. So relation is reflexive as 1, 1, 2, 2, 3, 3 and 6, 6 all belongs to R. डॉट लगा दिया, मतलब ये समझ में आ गया कि यहाँ 4, 4, 5, 5 आ जाएगा. All belongs to R implies R is reflexive. Okay. Now we will check for symmetric. तो symmetric के लिए तुम यहाँ पर देखो, अगर 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए. ढूंढते हैं, 1, 2 भी है here, तो 2, 1 ढूंढो, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 नहीं मिला, तो लिख देंगे as 1, 2 belongs to R but 2, 1 not belongs to R, so R is not symmetric. R is not symmetric. ठीक है. तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक के लिए हमने चेक कर लिया. अब ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं. तो देखो, ट्रांजिटिव के लिए जब आप चेक करोगे तो आप ऐसे समझना कि इफ x, y belongs to R implies y is divisible by x. इसका क्या मतलब है? y upon x. इसका मतलब है कि y, if y is divisible by x, then x is a factor of y. तो y we can write as x into some constant upon x. लिख सकते हैं, तभी तो ये डिविजिबल होगा. ओके. फिर एक और एंट्री हमें ट्रांजिटिव के लिए चेक करना पड़ेगा. अगर x, y है एंड y, z भी है, y, z भी है, दो एंट्री लेना होता है हमें, a, b और b, c. फिर a, c के लिए चेक करते हैं. तो x, y we have considered and y, z belongs to R means रिलेशन क्या है? y is divisible by x, जो सेकेंड पेयर है is divisible by, जो सेकेंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का is divisible by फर्स्ट एलिमेंट, y is divisible by x. तो यहाँ क्या बनेगा? z is divisible by y, z is divisible by y बनेगा. तो इसका क्या मतलब है? z is divisible by y, मतलब z is divisible by y, so j we can write z as in factors of y, y is a factor of z, तो z को y into k upon y लिख सकते हैं. Now we have to check that whether x, z belongs or not. So for x, z, what we will write for x, z? z upon x is true or not. हमें ये चेक करना है कि z is divisible by x है या नहीं है. तो आप z को क्या लिखोगे? We will write z as y into k upon x and again we will write y as x into k. तो y की जगह पर, अच्छा ये तुमने यहाँ x into k लिया है, y into, मान लो कोई नया कांस्टेंट ले लेते हैं k1, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हर बार कोई एक ही कांस्टेंट आएगा. मान लो कोई दूसरा कुछ भी आ जाए x के अलावा, तो x into k, यहाँ पर हमने y into k1 लिख दिया है, y into k1 लिख लेते हैं. ओके. नाउ इन प्लेस ऑफ y वी विल राइट x into k, ये k1 x into k और into k1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन x.
तो हमने ये प्रूव कर पा रहे हैं यहाँ पर कि z इज डिविजिबल बाई x बिकॉज x इज अ फैक्टर ऑफ z। ये क्या है ओवरऑल, ये z है, तो x इज फैक्टर ऑफ z। तो दिस इम्प्लाइज वी कैन राइट z इज, हमने यहाँ देख पा रहे हैं कि ये z अपॉन x यहाँ पर ट्रू होता हुआ दिख रहा है, तो z इज डिविजिबल बाई x। z इज, ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि z इज डिविजिबल बाई x यहाँ पर हो रहा है, z इज डिविजिबल बाई x है। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं z इज डिविजिबल बाई x, सो r इज ट्रांजिटिव, r इज ट्रांजिटिव। तो फाइनल आप कंक्लूड कर सकते हो इसको, कंक्लूडिंग लाइन कैसे बता सकते हैं, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। दिस implies we can write what, hence, this implies छोड़ दो, hence R is क्या क्या है ये, रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। hence R is, or you can write hence R is reflexive and transitive, but not symmetric, is that clear? तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। ओके, नाउ सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट, डिटरमाइन वेदर गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यहाँ भी हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करना है। रिलेशन क्या है, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो इस बार रिलेशन किस पर है, इस बार रिलेशन जेड पर है। जेड को सेट ऑफ इंटीजर्स कहा जा रहा है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो देखो यहाँ पर चेक करते हैं, एक्स कमा वाई, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो इंटीजर तो तुम्हारा क्या है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। तो मान लो लेट x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू के वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर, जहाँ पर हमने मान लिया कि k इंटीजर है। तो अब हमें ये चेक करना है कि जब x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू सेम हो जाए, कोई वैल्यू हमने k एज्यूम कर लिया, तो क्या इसके लिए ये डेफिनेशन ट्रू है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर ट्रू है। तो लिखो नाउ फॉर k कॉमा k, हमने x और y की जगह पर क्या रख दिया, k। तो k कॉमा k क्या करना चेक, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू k माइनस k, क्योंकि x और y की जगह पर हमने क्या रख दिया है, k। तो k माइनस k इज इक्वल्स टू 0 विच इज एन इंटीजर, 0 क्या है, एक इंटीजर है। इसका क्या मतलब है, हम लोग सिर्फ उसी एलिमेंट्स को, उसी x और y को यहाँ पर ले पाएंगे जिसके लिए ये डेफिनेशन ट्रू है। तो हमने देखा कि अगर x और y की वैल्यू सेम कर देते हैं तो x माइनस वाई इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब है कि k कॉमा k बिलोंग्स टू रिलेशन वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर, जहाँ पर k इस इंटीजर के अंदर है, तो k कॉमा k बिलोंग्स टू r। हमें रिफ्लेक्सिव के लिए तो यही चाहिए, दोनों की इंट्री सेम हो जाए। यहाँ पर आप कमेंट कर दो r इज रिफ्लेक्सिव। तो हमने ये रिफ्लेक्सिव प्रूव कर पा रहे हैं। यहाँ पर सिमेट्रिक के लिए देखो क्या करते हैं, सिमेट्रिक के लिए कि इफ x कमा वाई बिलोंग्स टू r, अगर x कमा वाई रिलेशन में है तो दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई इज एन इंटीजर। x माइनस वाई कोई इंटीजर मान लो i आ गया, x माइनस वाई इज एन इंटीजर i इक्वल्स टू इंटीजर है ना, वेयर जहाँ पर i क्या है, कोई इंटीजर है, कोई सा भी इंटीजर है। तो अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो y माइनस एक्स क्या होगा, माइनस आई भी कोई इंटीजर ही होगा। मान लो 2 कोई इंटीजर है और हमने इसमें माइनस साइन लगा दिया, तो -2 भी तो इंटीजर ही है फिर। तो उसी तरह से x माइनस वाई इंटीजर है तो y माइनस एक्स क्या होगा, हम नेगेटिव कॉमन कर लेंगे तो ये नेगेटिव उधर शिफ्ट हो जाएगा, दैट विल बी माइनस आई इज अ न्यू इंटीजर i1। ठीक है, तो y माइनस एक्स का क्या मतलब है, दिस इम्प्लाइज हमने
y को पहले लिखा है y माइनस एक्स, एक्स कमा वाई, रिलेशन को पलट दिया है, तो इसका मतलब है अगर x कमा वाई रिलेशन में है तो y कमा एक्स भी रिलेशन में है। दिस इम्प्लाइज आर इज सिमेट्रिक। तो आर हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब हम लोग ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं। नाउ इफ मान लो मैंने लिख दिया a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब है कि a माइनस बी इंटीजर है, x माइनस वाई इंटीजर है, ठीक है। b कॉमा सी एंड लिखना, एंड, क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए दो पेयर लेने होते हैं और तब हम लोग चेक करते हैं कि क्या a कॉमा सी आएगा नहीं आएगा। तो b कॉमा सी बिलोंग्स टू r का मतलब है b माइनस सी कोई इंटीजर i2 है। अब आप इस दोनों इक्वेशन को, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो ऑन एडिंग। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऑन एडिंग, ऑन एडिंग। इनको ऐड करने पर अगर आप ऐड करोगे तो ये माइनस भी प्लस भी कट जाएगा, हमें मिलेगा a माइनस सी इक्वल्स टू i1 प्लस i2। तो i1 प्लस i2 इज ऑल्सो वन इंटीजर i3। इज दैट क्लियर? i1 प्लस i2 भी कोई इंटीजर आएगा i3। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दिस इम्प्लाइज a कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू r। हमने प्रूव कर दिया ना कि a कॉमा बी अगर है और b कॉमा सी है तो a कॉमा सी भी होगा। यहाँ पर a कॉमा बी होने का क्या मतलब है समझना, यहाँ पर a कॉमा बी होने का मतलब है कि a माइनस बी इंटीजर है अकॉर्डिंग टू दिस। b कॉमा सी होने का क्या मतलब है, b माइनस सी इंटीजर है, x माइनस वाई मतलब b माइनस सी इंटीजर है। तो अगर ये दोनों हैं तो क्या a माइनस सी भी इंटीजर होगा? तो हमने इस रिलेशन को, इन दोनों रिलेशंस को ऐड करके ये बताया कि a माइनस सी भी i1 प्लस i2 दो इंटीजर का सम इंटीजर ही आता है। इसका मतलब a माइनस सी इंटीजर है तो a कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू r, सो r इज ट्रांजिटिव, r इज ट्रांजिटिव। बात समझ में आ गई? इसका मतलब है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, हैंस लास्ट लाइन लिख लेना आप, r इज रिफ्लेक्सिव, symmetric as well as transitive, okay, thank you.